दिस लेसन जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अ, हमारी थ्री स्टेट्स होती हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है। सो आज हम इन ऑल बाय ऑल को पढ़ेंगे। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता होगा। आई एम कदीर अहमद। आई हैव डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड आई बीन टीचिंग O and A levels chemistry for more than 5 years. So let's get started. So as we know that there are three states of matter, including solids, liquids, and gases. So these all states of matter are arranged on the basis of arrangement of particles. That how the particles are arranged in the pattern. So when we talk about the solid particles, right? When we talk about solid particles, they are very closely packed together, and there is no any space between the molecules. So each molecule is very close to the other molecule. In this way, they can make a strong bond as well, right? So in this way, we can say that due to the close packing, there are strong attractive forces between the particles, strong attractive forces, and there is no space left between the two particles. So there is no space possible to move here and there. So the solid particles can only vibrate at their fixed positions because there is no any free space to move. So they can only vibrate on their mean positions, and due to this arrangement of particles, they have a fixed shape as well as fixed volume. So the particles of a solid have fixed shape as well as fixed volume. And when we talk about the liquids, liquid particles are moderately packed. It means that they are neither too close nor too far away from each other. They are closely packed, and they are loosely packed in comparison with solids, and are more compact packed in comparison with the gases. So the particles in this arrangement, there are somehow free spaces between the particles. So in this way, they can make free movements as well. So due to these intermolecular distances, we can say that liquids have moderately attractive forces. Moderately strong attractive forces, it means that they are neither too much strong nor too much weak. They are moderately strong. So, due to spaces between those particles, they can move rapidly at moderate speeds. So, in this way, we can say that they can move from one place to another due to space. And we can say that there are no tightly packing between the particles. So, due to this reason, they do not have a proper shape. Liquids do not have a proper shape. Liquids always take the shape of their container, and we can say that ये जो particles के बीच में अरेंजमेंट है, ये इतनी दूर है कि इसकी वजह से इस इनका शेप तो नहीं आता, लेकिन इतने क्लोज फिर भी हैं कि ये इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर रहता है। ठीक है। गॉट माई पॉइंट? And the third state of matter is gaseous state. So we can say that the gas particles are very, very far from each other. And due to this property, they have very weak attractive forces, or we can say that they have negligible forces of attraction between those particles. Got my point? And we can say that due to the weak intermolecular attractions or forces, they are free to move at high speed. So they can move from one place to another due to more spaces. And we can say that due to the negligible forces of attraction, they cannot have any proper shape because they are not arranged in closely packed manner. And we can say that they have no fixed volume as well. ठीक है। सो यहां तक आपको क्लियर है कि गैसेस के ना तो प्रॉपर शेप होता है ना प्रॉपर वॉल्यूम होता है, और लिक्विड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम तो जरूर होता है लेकिन दे कैन नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, बट सॉलिड्स हैव बोथ।
यहां तक आपको क्लियर है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। के स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास जो चेंजेस होती हैं वो किस किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट? हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? Which process are used to change the state of matter, Valula? How can we Sir, change temperature, temperature? Another kind that we can use to change the state of matter. sir, pressure, Exactly. Both are used to change the uh, state of matter, right? So we can say that changes in state of matter are due to the change in temperature. We can say that कि यहाँ पे हमारे पास solid particles हैं, right? So solid particles are tightly packed together and there's no free space between these particles. So when we provide heat towards these solid particles, तो हीट क्या करेगी? इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको हीट क्या करेगी? ब्रेक कर देगी। So when heat is used to break down the पार्टिकल्स फोर्सेस, सो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर। सो लिक्विड के अंदर देखें यहाँ पे एक फ्री स्पेसेस क्रिएट हो गए हैं। और अगर फर्दर हम लिक्विड को और भी हीट करें नीचे से, देन लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से और ज्यादा दूर चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी ऑब्टेन द लास्ट स्टेट दैट इज गैस स्टेट। ठीक है? सो वी कैन से दैट when we apply a temperature to a solid and when it converted into a liquid, so the process is known as melting, right? So when a liquid is being heated and a liquid particle is converted into a gas particle, then the process are known as boiling and sometimes it is known as evaporation. So हमने ये भी पढ़ा था कि there is a difference between evaporation and boiling. Boiling happens at a certain temperature. जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इट मीन्स के 100 से नीचे ना तो बॉइलिंग होगी, ना ना तो कोई चीज और होगी। ठीक है? सो बॉइलिंग हमेशा कितने टेम्परेचर के ऊपर होगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और हमें पता है कि बॉइलिंग जो होता है दैट इज अ कंप्लीटली और थॉरोली प्रोसेस जिसके अंदर पूरे का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एवापोरेशन, एवापोरेशन होता है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। एवापोरेशन जो है वो हो सकता है, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी एवापोरेशन का प्रोसेस हो सकता है बिकॉज एवापोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई बॉइलिंग भी हो रही है और एवापोरेशन भी हो रहा है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी प्रोसेस कौन सा जल्दी जल्दी प्रोसेस कौन सा कन्वर्ट करेगा लिक्विड को गैस के अंदर? sir, evaporation, देखें, ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ग्लास में वाटर है, ठीक है? और ये एक हमारे पास जो है वो एक कंटेनर है, इसको हमने जो है नीचे से बॉयल कर रहे हैं। तो ज्यादातर वेपर्स किस में से निकलेंगे? बॉइलिंग वाले से या एवापोरेशन वाले से? sir, boiling वाले से, एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि देखें, जब हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तो हीट क्या करेगी? उन पार्टिकल्स को जल्दी जल्दी वेपराइज करना स्टार्ट कर देगी। सो वी कैन से दैट जब हम रेट की बात करें कि लिक्विड से गैस के अंदर जो फिनोमिनन तब्दील कर रहा है, बॉइलिंग भी है और एवापोरेशन भी है, लेकिन रेट फास्टर स्पीड में कौन ज्यादा कन्वर्ट करेगा? बॉइलिंग करेगा, क्योंकि एवापोरेशन रेट जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है ना? गॉट माई पॉइंट? yes sir, एवापोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारे पास एवापोरेशन और बॉइलिंग ये दोनों कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उस दिन जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपको शायद याद हो, मैं इसी यही बात कर रहा था
फ्रॉम मूविंग मूविंग फ्रॉम सॉलिड्स टुवर्ड्स गैस। मूविंग फ्रॉम सॉलिड्स टुवर्ड्स गैस। अब मुझे बताएं आप कि एनर्जी देनी पड़ी है या एनर्जी निकलनी पड़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी तो एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड कन्वर्ट होके गैस के अंदर जाएगा। राइट। जी सर। ओके। नाउ जिस इसका रिवर्स करते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है कि हमारे पास गैस हमारे पास बनी हुई है। उस गैस को हम एक चेंबर के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम गैस को चेंबर के अंदर कलेक्ट करें और वो चेंबर हीट सोर्स से थोड़ा दूर हो, मिसाल तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक जो है वो कंटेनर है जो नीचे से हीट कर रहे हैं उसको, और यहाँ पे ये इसका वेसल है, और ये वेसल कनेक्ट है एक कलेक्टर से जो यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स निकल के इस चेंबर में आएंगे। इस कूलिंग चेंबर के अंदर वेपर्स ठंडे होंगे। तो मुझे बताएं कि वो जो वेपर्स थे वो अब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? सर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि हीट सोर्स यहाँ पे है बॉटम पे। मुझे बताएं कि ये कंटेनर हीट सोर्स से करीब है या वो चेंबर हीट सोर्स के करीब है? सर कंटेनर। कंटेनर। अब जो चेंबर है वो हीट सोर्स से बहुत दूर है। इट मींस के जब तक गैस चेंबर तक जाएगी तो गैस का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होगा या उतना रहेगा या बढ़ जाएगा? सर जब वो चैम्बर में जाएगा वहां पे ठंडी हो जाएगी। वहां पे ठंडी हो जाएगी क्योंकि वो हीट सोर्स से दूर जा रही है। जैसे जैसे हीट सोर्स से कोई चीज दूर जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है। सो इट मीन्स के वी कैन से दैट कि जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो जब गैस एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। राइट। जी सर। व्हेन अ लिक्विड इज फर्दर कूल डाउन, जब हम इस लिक्विड को और भी ज्यादा कूल डाउन करें तो लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एग्जैक्टली exactly. लिक्विड इज आई। कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। अब देखें, यहाँ पे जस्ट हमने रिवर्स किया है। पिछले स्लाइड पे जो हमने पढ़ा जस्ट इसका रिवर्स किया है। गैस को कूल डाउन करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। जी सर। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड के पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। ठीक है। सॉलिड। तो व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। अब मैं इस यहाँ पे एक और प्रोसेस को का आपको बताऊं कि एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसमें एक जो सॉलिड होता है दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और उस प्रोसेस के एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो है एक तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अमोनिया। ठीक है। वो इसके जो है प्रीमियम एग्जांपल्स वगैरह भी हैं। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। लेट्स मूव फर्दर। ठीक है। अच्छा। अब देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये स्लाइड ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना ये स्टेट्स ऑफ मैटर के या फेज चेंज के या कौन सी स्टेट होगी इस टेम्परेचर की रेंज में, तो आपको चीज सिंपल समझ आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, एक एक मैं आपको रेंज देता हूँ। ठीक है ना, उस रेंज के अकॉर्डिंग हम एक बात को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। अब देखें, हम मिसाल लेते हैं वाटर का, H2O। ठीक है। अब देखें H2O। H2O का आप मुझे बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 100। मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बॉइलिंग होता है। ठीक है। जी बॉइलिंग सर। पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप मुझे मुझे बताना है, मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, आपने मुझे बताने जाना है। जब कोई वाटर, कोई भी सैंपल वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा तो वाटर की कौन सी स्टेट होगी? लिक्विड। लिक्विड। एक्सेलेंट। अब देखें, जैसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी रखते हैं तो वो भी लिक्विड के अंदर होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है? 26 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर वो क्या होता है? लिक्विड। अगर ये 88 पे पहुंच जाए
तो बी क्या होगा, लिक्विड होगा। इट मीन्स के 0 से लेके 100 की रेंज तक जब टेम्परेचर जाएगा तो वाटर की कौन सी स्टेट मिलेगी, लिक्विड स्टेट। अब अगर हम बात करें कि वाटर की मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, मिसाल के तौर पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर किस फॉर्म में मिलेगा हमें, सॉलिड। सॉलिड में, इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है। और अगर हम बात करें 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमें वाटर किस में मिलेगा, गैस। गैस में मिलेगा। एक्सीलेंट। ठीक है। अब एक कुछ सिर्फ आपने 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि जब टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट हो तो चीज किस में मिलती है हमें, बिलो मेल्टिंग पॉइंट में हो तो चीज किस में मिलती है हमें, सॉलिड में मिलती है। ठीक है। और अगर एक चीज अबव बॉइलिंग पॉइंट हो तो वो किस में मिलेगी हमें, अबव बॉइलिंग पॉइंट। एम आई ऑडिबल? जी सर। मैं पूछ रहा हूं कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो वो चीज हमें किस में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, सर गैस। गैस में। और जब उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो जाएगा तो वो किसके अंदर मिलना स्टार्ट हो गया हमें, सॉलिड। सॉलिड में। और जब कोई चीज बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर टेम्परेचर, बिटवीन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के अंदर उसका टेम्परेचर की रेंज हो तो वो किस चीज के अंदर मिलेगी हमें, लिक्विड। लिक्विड। अब ये लॉजिक आपको समझ आ गया, 3 चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अगर टेम्परेचर रेंज बिटवीन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हो तो वो हमें लिक्विड के अंदर मिलेगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम है तो इट मीन्स कि वो चीज हमें सॉलिड में मिलेगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर है तो इट मीन्स कि वो हमें किस में मिलेगी, गैसियस स्टेट में मिलेगी। राइट? समझ आई बात? जी सर। अब इसी चीज के ऊपर ना आपका एक क्वेश्चन आ रहा है आगे, वो क्वेश्चन आपने मुझे हल करके बताना है। ठीक है। आई होप कि आप उसको आसानी के साथ जो है ना वो सॉल्व कर लोगे। करें सॉल्व इसको। चलें अब देखें, इसी को हम ना डिस्कस करते हैं। सो अब देखिए, आपने एक लाइन खींच लेनी है यहां से यहां तक। ठीक है, एरोस्पेस। अब देखना है कि यहाँ पे ऊपर आपने लिखना है कि हमारे पास होता है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बी एंड पी। नीचे होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज एम एंड पी। अब मुझे ये बताना है आपने कि इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 7.2, 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका बॉइलिंग कितना है, दैट इज 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब यहां से आपने नोट करना है कि अगर इस टेम्परेचर की रेंज के अंदर जो है ना, इन बिटवीन दीज पॉइंट्स, वो कौन सा है हमारे पास, 8.5। वो कौन सा है, 8.5। एक्सीलेंट। यहां से लेके यहां तक है 8.5। और जब टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग की रेंज के बीच में हो तो इट मींस कि वो कौन सी स्टेट बनेगी, लिक्विड। ठीक है, गुड। अब देखें कि मेल्टिंग पॉइंट, अब देखें मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो देखें -7.2 से माइनस -12, तो ये उससे तो और भी नीचे होगा ना ये, -12। तो ये देखें ये मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या होगा, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड। एक्सीलेंट, दिस इज सॉलिड स्टेट। और 60, देखें ये यहाँ गैस। पे, ये यहाँ पे आएगा अबव दी बॉइलिंग पॉइंट। तो इट मीन्स के ये कौन सा टेम्परेचर होगा हमारे पास, कौन सी स्टेट होगी ये, इट मीन्स के दिस इज द गैस। स्टेट। गॉट माई पॉइंट? समझ आ गई बात आपको यहां तक? जी सर। ठीक हो गया, ओके। सो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो इट मीन्स के ये चीज पढ़ी हुई थी वैसे, क्लास में मैंने पढ़ाई थी आपको।
जी सर। क्लास में भी मैंने शायद इस चीज को डिस्कस किया हो, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं जरा थोड़ा सा आगे हम, ठीक है। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक ना बहुत जरूरी है भाई। ये टॉपिक अगर आप लोग समझ में आ गया, इट मीन्स कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। दिस इज हीटिंग कर्व, ठीक है। हीटिंग कर्व किसको कहते हैं? व्हाट इज हीटिंग कर्व? सर ग्राफ में जो लाइंस होती हैं हम्म। वो हमें शो करती हैं एग्जैक्टली। कि टेम्परेचर कितना है। किसी हम्म। भी मीन्स आप देखें, अगर वाटर का देखें तो वो किस पॉइंट पर मेल्ट हो रहा है और बॉईल हो रहा है, और किस हम्म। पॉइंट पर वो फ्रीज होता है, वो हम ग्राफ की मदद से ग्राफ निकालते की हैं। हेल्प से, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है। द क्वेश्चन इज दैट इसके अंदर कुछ लाइंस ना आपको हॉरिजेंटल नजर आ रही होंगी, बिल्कुल हॉरिजेंटल एक प्लेन के अंदर। और कुछ लाइन ऐसी होती की जो इंक्लिनेशन के अंदर होगी, वो ऊपर इंक्लाइन हो रही है। जैसे यहां से लेके यहां तक देखें आप एक लाइन, ठीक है। ये लाइन देखें, ये टुवर्ड्स ऊपर ये इंक्लाइन हो रही है, और यहां से देखें यहां तक ये एक बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन है। सो इन लाइंस का मतलब क्या होता है? यहां से फिर यहां तक इंक्लिनेशन हो रही है, यहां से यहां तक फिर जो है वो क्या कह रहा है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। सो इस चीज को पढ़ने के लिए ना, अब चलें हम थोड़ा आगे मूव करके, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। अब देखें हमारे पास ये, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5, एंड लास्ट वन इज 6। मेरी वॉइस क्लियर आ रही? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है ना वॉइस के अंदर? वॉइस के अंदर कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है ना? नो सर। हाँ, अब देखें, यहां पे एक सॉलिड है। सॉलिड, सॉलिड जब ऊपर जाता है यहां से इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहां पे आ रहा है, बिल्कुल यहां पे। देखिए यहां तक ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बल यहाँ 2 से लेके 3 तक जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल सेम रह रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, किसी चीज की मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? किसी चीज की मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। अब इसका मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। देखें आप ना एक काम करें, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर इसका -3 है, यहाँ पे टेम्परेचर इसका -2 है। तो टेम्परेचर देखें, कम टेम्परेचर इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन क्या इतना इंक्रीज हो रहा है कि वो सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करे? यहाँ पे टेम्परेचर जीरो, नो सर। यहाँ पे टेम्परेचर जीरो आया। जैसे ही टेम्परेचर जीरो के ऊपर आया, मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या स्टार्ट होगी? मेल्टिंग। मेल्टिंग स्टार्ट होगी। आपने नोट किया होगा कि जब बर्फ मेल्ट होती है तो बर्फ का टेम्परेचर सेम रहता है, चाहे बर्फ का एक पूरा एक आपके पास कंटेनर हो या एक बर्फ का छोटा क्यूब हो। उस उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। इट मींस के जब किसी चीज की मेल्टिंग होती है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या रहता है? बिल्कुल कांस्टेंट। सेम। टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मैं ये चीज आगे आपको स्लाइड की हेल्प से भी बताता हूँ कि 1 से लेके 2 के ऊपर क्या हो रहा है, 2 से लेके 3 के ऊपर क्या हो रहा है, 3 से लेके 4 तक क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। अब देखें, जैसे ही पूरी बर्फ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन गई, देखें इस स्टेट को जब मेल्टिंग हो रही होती है, तो आपने नोट किया होगा कि मेल्टिंग के दौरान हमें दो स्टेट्स मिलती हैं। कुछ कुछ बर्फ होती है और कुछ कुछ बर्फ से पिघल के पानी हो रहा होता है। इट मीन्स के जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो हमें दो स्टेट्स मिलती हैं। एक मिलती है हमारे पास सॉलिड, और दूसरी हमारे पास मिलती है कौन सी? लिक्विड। नोट किया आपने कभी? नो सर। एक आप एक आइस का क्यूब निकाल के रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें, आइस पिघलेगी ना। आइस पिघलेगी तो आइस में से पानी यहाँ पे साइड में टेबल के ऊपर पानी 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 आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा आइस बाकी भी तो रहेगा ना। इट मीन्स के यहाँ पे फेज ट्रांजिशन चल रहा है। इट मीन्स के बर्फ पिघल रही है, बर्फ का पिघलना इट्स अ फेज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सो कुछ कुछ सॉलिड होता है, कुछ कुछ लिक्विड होता है। ये तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जी जी सर। ठीक है। अब जब सारी की सारी बर्फ पिघल गई, सारे का सारा पानी है यहाँ पे। अब बर्फ बर्फ कुछ भी नहीं है, सारे का सारा पानी है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट होगी अब?
लिक्विड। लिक्विड। अब लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। वंस द टेम्परेचर रीचेज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा यहाँ पे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड पार्टिकल्स। यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जी। सो जी। लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू अ गैस। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? फेज ट्रांजिशन स्टेट। जी सर। फेज ट्रांजिशन स्टेट पे हमारे पास कितनी स्टेट्स मिलती हैं? दो। एक तो होता है लिक्विड, और वो आहिस्ता आहिस्ता किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है? गैस के अंदर। गैस में। अब जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट 100 रहेगा, ठीक है। अब जब सारी की सारी गैस बन जाएगी, तो फिर अगेन टेम्परेचर क्या करेगा हमारे पास? राइज करेगा, ठीक है। अगेन टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। अब इसी चीज को जो है वो प्रॉपर इलस्ट्रेशन के हिसाब से मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू करवाता हूँ कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। 1 से लेके 2 तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है, 2 से लेके 3 तक, एंड सो ऑन। तो इस चीज से आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी इस चीज की हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखें, सबसे पहले सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल दूर होते हैं। सो अब आते हैं, व्हाट हैपेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अब जैसे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जा रहे हैं, तो टेम्परेचर देखें राइज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है सर। राइज हो रहा है। इट मीन्स के सॉलिड इज बीइंग हीटेड। सॉलिड क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी जी। को गेन करके अपनी ही मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर रहे हैं? हिल जुल रहे हैं, ठीक है। सो अब दूसरा पॉइंट देखें कि 2 से लेके 3 तक क्या हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर देखें क्या रहा है? टेम्परेचर टेम्परेचर फिक्स है, नो चेंज इन टेम्परेचर। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं ना, वो किस चीज के लिए यूज हो रही है? वो यूज हो रही है इन सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, ठीक है ना, टू ओवरकम दी एट्रैक्टिव फोर्सेस। तभी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक है। टेम्परेचर तो तब बढ़ता ना जब कोई एक स्टेट होती। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट बन रही है, सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, तो जो एनर्जी दे रहे हैं वो उनको ब्रेक करके किसके अंदर कन्वर्ट कर रही है? लिक्विड में। हाँ जी, लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब आ रहे हैं पॉइंट 3 से लेके 4। टेम्परेचर बढ़ेगा। जी सर। ठीक है। पार्टिकल्स मूव फास्टर, ठीक है ना। जैसे अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर 30 के ऊपर आया, फिर टेम्परेचर 40 के ऊपर आया, फिर 50 के ऊपर, 60, 70, 80, 90। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स तेज तेज मूव करेंगे। जी सर। जैसे ही टेम्परेचर 100 के ऊपर पहुंचेगा, तो यहां से क्या स्टार्ट होगा? पॉइंट 4 टू पॉइंट 5। यहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा? 100। 100। टेम्परेचर सेम रहेगा 4 से लेके 5 तक। जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? जो एडिशनल जो हीट दे रहे हैं, वो किसके अंदर काम आ रही है? वो क्या कर रही है? सर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको को बढ़ा रही है। यहाँ पे इसको पढ़ लें जरा आप। Energies gained is used to overcome the attractive forces between the particles to separate them even further apart. उनको और भी दूर कर रही है। तो जब और दूर करेगी लिक्विड के पार्टिकल्स को एक दूसरे से, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। गैस के अंदर। और लास्ट आता है 5 से लेके 6 तक। गैस के पार्टिकल्स और एनर्जी गेन करेंगे, तो फिर उनका टेम्परेचर क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा, जी सर। ठीक है। सो यहां तक आपको हीटिंग कर्व समझ आ गई? हीटिंग कर्व क्या होती है? जी सर। हीटिंग कर्व के ऊपर आपको डायग्राम भी बनाना ओके हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपको अच्छा एक और बात, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी पूछ लेता है कि हीटिंग कर्व के अंदर
जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसके अंदर कितनी स्टेट्स हमें मिल रही होती हैं, बताएं। सर 3। दो स्टेट्स देखें। 2 से लेके 3 तक हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? दो। एक होती है सॉलिड और दूसरी लिक्विड। और एक और फेज ट्रांजिशन है यहाँ पे 4 to 5। कितनी स्टेट्स हैं? एक लिक्विड एक गैस। दो ये हो गई, ठीक है ना। सो इट मीन्स कि जब फेज ट्रांजिशन होता है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कोई चीज जा रही होती है, तो हमें दो स्टेट्स मिलती हैं। एक स्टेट वो जो ऑलरेडी होती है, और एक स्टेट वो जो नई उससे बन रही होती है। समझ आई बात? लेकिन सर यहाँ 3 क्यों नहीं हो रही सर? सॉलिड लिक्विड गैस तो 3 है ना। स्टेट्स 3 हैं। मैं सिर्फ, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन है एक, और ये हॉरिजेंटल लाइन है जी। दूसरी। इन हॉरिजेंटल लाइंस के ऊपर आपको कितनी स्टेट्स मिलती हैं? देखें, एक ये पेयर आ गया और दूसरा ये पेयर आ गया। मैंने हॉरिजेंटल लाइंस की बात की है, मैंने पूरे ग्राफ की बात नहीं की। ओके सर। ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइंस के ऊपर, एक तो हॉरिजेंटल लाइन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हॉरिजेंटल लाइंस को हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कोई चीज जा रही है। और इन हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। और टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, इसका रीजन भी आपने बताया थोड़ी देर पहले। क्या है इसका रीजन? सर वो मॉलिक्यूल्स को डिस्टेंस मीन्स पैदा करता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, उन फोर्सेस को तोड़ने के अंदर काम आता है, ठीक है। जी सर। और जस्ट उसके अपोजिट हमारे पास आती है यहाँ पे कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व क्या होती है? एक पार्टिकल को हीट करने के ऊपर वो किस तरह से अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, और जस्ट उसका उलट कर दें तो उसको हम कहते हैं कूलिंग कर्व। समझ आ गई बात? अब कूलिंग कर्व मुझे समझा सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या होगा हमारे पास इस पॉइंट पे? सर यहाँ पे हमारे 0 टेम्परेचर। ऊपर ऊपर जीरो टेम्परेचर तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे होगा ना जीरो। ये कूलिंग कर्व है। यहाँ पे आपके पास होगी गैस, ठीक है। गैस ठंडी होके क्या बन रही है यहाँ पे? लिक्विड। यहाँ पे देखें, एक ये हॉरिजेंटल लाइन है और दूसरी ये हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? फेज ट्रांजिशन। जैसे मैं जी आपको सर। वाटर का केस समझाऊं आपको मैं, ठीक है। अच्छा, अगर वाटर का केस समझाएं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 120 का टेम्परेचर, यहाँ है 115 का टेम्परेचर, यहाँ है 110 का टेम्परेचर, और यहाँ है आपके पास 100 का टेम्परेचर। मुझे बताएं, जब 120 पे होगा तो भी पूरे की पूरी गैस होगी, वेपर्स होंगे। जब 115 होगा जी सर। फिर भी सब वेपर्स होंगे। जब 110 होगा फिर भी सब वेपर्स होंगे। जब 100 होगा ना, तो यहाँ पे आपके पास 100 से जैसे ही थोड़ा 100 पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे गैस से क्या बनना शुरू होगा? लिक्विड। लिक्विड। तो यहाँ पे गैस से लिक्विड बनना स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है? अच्छा, यहां से लेके यहां तक मुझे बताएं। जैसे हम पहले कहते हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को बताएं जरा मुझे आप। ये यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस। यहाँ सर फेस में दे रहा है। हाँ, यहाँ मुझे बताएं कि इस चीज को क्या कह रहे हैं? जब गैस कूल डाउन होके फेज ट्रांजिशन के अंदर आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। एक्सीलेंट। तो आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो चीज होगी वो होगी कंडेंसेशन, ठीक है ना। ये क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। हम वो पढ़ के आए हैं ना, चेंज ऑफ स्टेट। उसके अंदर एक था जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, और एक था जब टेम्परेचर घटा रहे थे। ये टेम्परेचर घटाने वाली चीज है। तो जब गैसेस से अगेन लिक्विड बने तो उसको हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और जब आपके पास लिक्विड हो जाए, लिक्विड लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दें आप, बिल्कुल लिक्विड को आप जीरो पे पहुंचा दें, मुझे बता दें, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पहले क्या कह रहे थे उसको? हीटिंग कर्व के अंदर उसको मेल्टिंग बोलते थे हम। और कूलिंग कर्व के उसके अंदर हम क्या कहेंगे? जी सर। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। एक्सीलेंट।
तो यहाँ तक आपका ये कंसेप्ट जो है हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व का, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आगे हम थोड़ा फर्दर मूव करें। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। हर चीज क्लियर है? जी सर। ठीक है, ओके हो गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास इस जूम मीटिंग के अंदर 1 मिनट रह गया। ठीक है,